Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Facors channel. Dear students, in this lecture we will be discussing about the climate, which is the last lecture of this series of geography. So first of all, we will look into the difference between the weather and the climate, and then we will discuss the different factors that affecting the climate of a region. So what a weather is? Weather can be translated in Urdu as मौसम. वेदर को हम उर्दू में कहते हैं मौसम, ठीक है, और क्लाइमेट को कहते हैं, आप कह सकते हैं आबो हवा. इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, वेदर जो है इट इज द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये एटमॉस्फेयर की वो हालत है जो कि आपको बताता है जस्ट द कंडीशंस ओनली जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक मुख्तसर मुद्दे के लिए आपको जस्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करता है. लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आज क्या मौसम है और कल क्या मौसम था और आने वाला कल क्या मौसम होगा, या इस वीक क्या मौसम है और नेक्स्ट वीक क्या होगा. सो इट जस्ट टेल्स यू अबाउट द डे टू डे इंफॉर्मेशन or week to week information. Like for example, there are different elements of the weather like the air, humidity, pressure, wind, the direction of wind, the cloud type, white cloud, dark cloud, dense clouds, or the precipitation, nami jo hoti hawa mein, are all the momentary conditions called the weather. So these are the elements or these are the factors through which all these conditions a weather is calculated, ठीक है. And weather forecasting is done with the help of a synoptic map. एक होती है जो weather broadcasting वाले कंपनीज होती हैं, they forecast, they predict, पेशेंगोई देते हैं weather के बारे में by the help of a synoptic map. There they occurs the bars, so they just tells with the help of isobars and the synoptic map, they tells and predict these elements like the air, the humidity, a pressure, a wind speed or direction or the precipitation of weather. So through these elements they can tell you about the weather, okay. On the other hand, the climate can be defined as the average conditions of the atmosphere for a long period of time. एक average of these elements, इन तमाम elements का एक average निकाल के, और and this can be occurred for a long period of time. It's not for a short period of time. So climate is the composite, एक मजमुआ है weather conditions का, इन तमाम conditions का, like for example the air, humidity, pressure, wind speed, wind direction and the precipitation. इन तमाम का मजमुआ है weather of a region or a series of years, ठीक है. अच्छा, एक सेंटेंस है, आप देखें, like the climate is what you expect and weather is what you get. देखें, आप कोई उम्मीद रखते हैं कि भाई क्या क्लाइमेट वो है, आबो हवा वो है कि आप जिसका उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट, ठीक है, और वेदर वो है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है. लाइक फॉर सपोज इफ आई से that the climate of Murray in the month of January is cold, so that's why I expect snowfall in the month of January in Murray city, or in Balochistan I expect snowfall in Quetta, ठीक है. So this is a climate, because whether the climate are cold or hot, if I say the climate of Sindh is hot as compared to Balochistan, so that's when the climate is what you expect, ये आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं. और जब मैं ये कहता हूं कि भाई मरी में जनवरी के महीने में स्नोफॉल होनी चाहिए, so this is my expectations. अब ये जरूरी नहीं कि हर मंथ जनवरी में हर साल स्नोफॉल हो, ठीक है. सो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है. So now we'll look on the different factors that affect the climate in a particular region. वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से जराए हैं, या वो कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ रीजन पे अपने ही उसकी क्लाइमेट होती है. एंड दिस क्लाइमेट चेंजेस, and the change of the climate is referred to the season of a particular region. लेकिन जो सबसे पहला फैक्टर है, that is the latitude or distance from the equator. The near to equator is hotter
एज कंपेयर टू द रीजन फॉर फ्रॉम द इक्वेटर। जो भी रीजन जो अर्थ का जो स्फीयर है, द स्फीयर ऑफ द अर्थ, जो रीजन इक्वेटर पे होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ और कॉल्ड द 0 डिग्री, वो रीजन्स दैट विल बी हॉटर एज कंपेयर टू अदर रीजन्स टुवर्ड्स द पोल्स। सो क्योंकि जो सेंटर पे होती हैं उस पर हमेशा वर्टिकल रेज पड़ती हैं सूरज की, दैट्स वाई जो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पर, तो इसलिए हमेशा इक्वेटर रीजन विल बी हॉटर देन दोज ऑफ द अप्स एंड डाउन of the hemisphere, either north or south. The second reason or factor of that affect the climate is the altitude or height from the sea level. It says that temperature decreases with the rise of altitude and temperature increases with the fall of altitude. देखें जो जमीन है, जो सी लेवल है, सी लेवल से फॉर एग्जांपल this is the sea level, then comes a mountainous region which is above the sea level. ठीक है, हर 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होती है, एक डिग्री सेल्सियस ऑफ अ टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये सी लेवल है, फॉर सपोज इट इज हाइट ऑफ 165, ये एल्टीट्यूड है, बिकॉज एल्टीट्यूड पर हमेशा हवा का दबाव कम होता है, हवा का दबाव बढ़ जाता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, देन कम्स कॉन्टिनेंटलिटी और द डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। जितने भी रीजन्स हैं और द कोस्टल रीजन्स विच आर एट द बॉर्डर ऑफ सी विल हैव और विल एक्सपीरियंस द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहां पर जो हवा होगी बिल्कुल मॉडरेट होगी एज कंपेयर टू द रीजन्स which are far from the sea. Then comes nature of prevailing winds. ठीक है, like the onshore winds bring moisture while the offshore winds bring dry heat. जो रीजन्स जो ऑन शोर्स होती हैं, जो रीजन्स जो एरिया समंदर या सी के आसपास होता है, दैट विल एक्सपीरियंस मॉइस्चर, उनकी हवा में मॉइस्चर होगी, नमी होगी, और जबकि वो रीजन जो कि एक लैंड के ऊपर होती है, जो समंदर या ओशियन वगैरह से वो दूर होती हैं, उनकी हवा में खुश्की पाई जाएगी और उस ड्राइनेस की वजह से देयर विल बी अकरिंग द evaporation will occur just because of the more heat. Then comes the cloud cover. देखें, the cloudy sky hinder both incoming and outgoing radiations of the sun and that results in the lowering of temperature. ठीक है, जब आसमान क्लाउड से भरा होता है उसकी वजह से जो सन की रेडिएशन है वो ना डायरेक्टली जमीन पर पड़ सकती हैं और नहीं डायरेक्टली वो जा सकती है, दैट्स वाई उस डायरेक्ट रेडिएशन न पड़ने की वजह से टेम्परेचर भी हमेशा लो रहता है। देन कम्स द ओशन करंट्स। ओशनिक करंट्स इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, जहां पर समंदर का पानी ठंडा हो जाता है, वो दे ट्रेवल द कोल्ड वाटर ट्रेवल टू द वार्म वाटर एज वेल एज द हॉट वाटर ट्रेवल टुवर्ड्स the cold water and they maintain the temperature, vice versa. Then comes the direction of mountainous chains. ठीक है, जिस तरफ माउंटेन होगा and mountain hinder the flow or the path of the wind. That's why जिस तरफ माउंटेन्स होंगे, जब माउंटेन रास्ते में आ जाता है, फॉर एग्जांपल हवा जा रही होती है इस डायरेक्शन में और रास्ते में पहाड़ पड़ जाता है, और जब हवाएं यहाँ पर डेंस हो जाती हैं इन अ क्लाउड वे, वहां फिर रेनफॉल होती रहती है। ठीक है, एज वी सीन नियर द मरी रीजन, जहां पर हिमालयस रेंज की वजह से हमेशा हवाएं जो जाती हैं दरिया यासीन और अरबियन सी की तरफ से, जो हवाएं जाती हैं हिमालयस पहाड़ के ऊपर पड़ती है, आगे जाने नहीं देती। जब हवाएं यहां पर दब जाती हैं एंड दे चेंज इटसेल्फ इनटू अ क्लाउड, एज अ रिजल्ट इट फॉल्स अ रेन और स्नोफॉल in the winter season. Then comes the slope and the aspect. ठीक है, अब दो तरह के स्लोप्स होते हैं, एक होती है जेंटलर स्लोप्स, एक होती है जेंटल स्लोप्स और एक होती है स्टीपर स्लोप्स।
क्या स्टीपर स्लोप्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, अब इनकी स्लोप जो है, ठीक है, इज इंक्लिनेशन फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स अ माउंटेन। अब ये स्लोप बिल्कुल वर्टिकल की तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पर रेज होती है, फॉर सपोज पहाड़ में जहाँ स्टीप स्लोप आ जाती है, so there it raises the temperature, raises temperature, वहां पर हमेशा रेज टेम्परेचर। अब सन की जो रेज पड़ रही होती है इसके ऊपर, वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं ऐसे ऐसे स्टीप स्लोप के ऊपर, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज होती रहती है। एंड द अदर स्लोप विच इज अ जेंटलर स्लोप विच इज नॉट मोर स्लीपर, इससे कहते हैं जेंटलर स्लोप। और इस ऐसे स्लोप के ऊपर जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, ठीक है, रेज ऐसे ऐसे जा रही होती हैं टुवर्ड्स अप एंड डाउन, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल और लोअर द टेम्परेचर। Then comes the last factor, that is the nature of the soil। देखिए जमीन के ऊपर बाज जमीनें हो सकती हैं जहां पर रेतीली जमीन होती है, सैंडी लैंड्स होते हैं, वन आर द क्ले लैंड। क्ले लैंड्स वो होते हैं जो दे आर प्योर मेड ऑफ द क्ले, मिट्टी की होती हैं। और बाज जमीनें ऐसे होती हैं सैंडी लैंड्स जहां पर रेत भी होता है, ठीक है। और रेत, the sand, is a semiconductor of the heat. That's why during the daytime they remain hotter, and during night it gets itself cooler quickly. While the clay is a belt conductor of heat. That's why इनको hot होने पे या cold होने पे time लगता है. So this was all about the factors